Are you ready for it? Just mute yourself. Everybody mute yourself. Good, nice. And everybody open your video. Students, open your video. Everybody, please open your video. Good one. Rashi, good morning. Mayank, good morning. Hitesh, good morning. ma'am. Good Hina, morning, good ma'am. morning. Naveen, good morning. Good morning, ma'am. And what about others? First of all, open your video. Aryan, good morning. Krishnam, good morning. Good morning, ma'am. Jay Prakash, good morning. Anand, Pooja, everybody, good morning. Jatin, good morning. Good morning. How are you, everybody? Good morning, ma'am. Good I'm morning. fine. How are you? I am also fine. Good morning, ma'am. Good morning, Peta. Yesterday we talked about the Nazism view. Yesterday we talked about the Nazism view, motherhood, everything we talked about yesterday. Yes, ma'am. Today we will start with the youth in Nazi Germany. Yeah, we have finished it. Ma'am, we have to start. Okay, fine. Today we will start with the art of propaganda. Is it correct? Yes, ma'am. First of all, I want to ask some question from you. So I will ask the question. Just open your video. जिसकी वीडियो ओपन होगी उसी से मैं क्वेश्चंस पुट अप करूंगी. Is it fine? Fine. Now I am starting with Anushka Dhingra. Anushka Dhingra, are you there? First question is, what do you mean by ghettos? Ghettos Yes, were? ma'am. Yes, ghettos were? Ghettos. Ma'am. Ghettos were political organization, area of mass killing, schools of Jews, या areas where Jews lived. Ma'am. Areas where Jews live. Very good, Anushka. Please all of you mute yourself. Just जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगी बस वही आंसर देगा. Yes, Jatin. Jatin. The question is, this is the name of ghettos, laws, concentration camp, Reichstag या Poland. This is the name of ghettos. This is the name of the ghettos. This is laws. This is concentration camp. This is Reichstag or this is Poland. What you say? Ma'am, please Hina repeat the Elani. question. This is the name of the ghettos. Is laws. Is concentration camp. It's Reichstag. It's Poland. Yes, Hina Elani. Ma'am, it's Poland. It's Poland. Anybody else? Concentration camps. Concentration camp. No, this is the name of laws. Okay? Yes or no? Yes, ma'am. Okay, now we are coming on the next question. And the question is, I am asking from, just open your video, beta. Everybody open your video. Why are you not opening your video? Is there any problem with you? Yes, Krishnam. Nitesh and Krishnam. You will give the response. Okay? Now ready? Yes, ma'am. Okay, fine. The question is, which party came to be known as the Nazi Party? Yes, Krishnam, Nitesh. Which party came to be known as the Nazi Party? Options. Options जरूरी है. Without options नहीं बता सकते हम.
नेशनल जर्मन वर्कर्स पार्टी, सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जर्मन वर्कर्स पार्टी या नेशनल सोशलिस्ट जर्मन Nationalist वर्कर्स? Socialist German Party. Very good. Neha Khanwani, if you want to give the response, you can write on the chat box. There is no problem. है ना? If you want to give the response, आप लिख सकते हो chat box पे. Okay? Now Yes, now my next question is, name the countries which formed the Axis power during the Second World War. Name the countries which formed the Axis powers during the Second World War. There is no any options. Nobody. Oh no. Name the countries which formed the Axis powers during the Second World War. Ma'am, Germany, Japan, Yes, Rashi, Germany, Japan, and Japan. ma'am, I think Italy. Yes, right, Rashi. Rashi, you are right. Germany, Italy, and Japan formed the Axis power. Now my Italy next. was an allied power in Second World War. It was No, an ma'am. Axis power, Ma'am, beta. Axis It power. was an Axis power. देखो जरा, open your copy. Just open your copy and say it. इतना confuse मत होइए आप लोग. Yes, ma'am, Axis में ही है. Yes, now next question is from नेहा. बुल्गारिया का आप ऐड नहीं करेंगे, okay? Now next question is from. Just open your video, beta. Why are you not opening your video? I don't understand. Mayank, are you ready to give the response? Yes, ma'am. Okay. Mayank, this question is for you. That how did Nazi kill the innocent people? Nazi kill the How did Nazis kill the innocent people? मैम वो कंसंट्रेशन कैंप में ले जाते थे Yes. और इनको टॉर्चर करते थे Okay. एंड मार देते थे कैसे? गैस छोड़ के. Bilkul. Very good. Nice. They gassing them in the numerous killing centers, and that's name of the centers are Auschwitz. Is it clear? Yes, ma'am. Now my next question is from Drishti Jain. Drishti Jain, are you there? Yes, ma'am. Okay. My question is, what was the nature of the government formed in Germany at Weimar? What was the nature of the government formed in Germany at Weimar? नहीं पता? Anybody knows? Gunjan? Ma'am, may I tell? Yeah, sure. Ma'am, Republic government. Republic government, Democratic Republic government, beta. Okay. Okay, ma'am. Now my next question is from Aryan Vadrani. Aryan Vadrani, are you there? Yes, ma'am. My question is, who were mockingly called the November criminals? Who were mockingly called the November criminals? No, Ruchi. Ma'am, Nazis. Nazis, Hitesh. Ma'am, German politicians. German politicians, Hitesh. Ma'am, socialist, Catholics and Democrats. Yes, socialists, Catholics, and Democrats were called the November criminals. Okay. Now my next question is from Gunjan. Gunjan and Harshal Mathur will give the response. Are you ready, Gunjan and Harshal? Are you ready, Gunjan and Harshal? Beta, just give the response, yes or no.
If you are not ready to giving the response, मैं कुछ और किसी और से पूछूंगी. Okay, Gunjan. The question is, name the party founded by Adolf Hitler. Yes, name the party founded by Adolf Hitler. Just write down the answer. Gunjan, अगर बोल नहीं सकते, just write down the answer. Jay Prakash, give the response. Jay Prakash, give the response. Yash Soni, Yash Kumawat, Harsh Gupta, Sachin, Sakshi, Shubhi, just give the response. Please repeat the question. Name the party founded by Adolf Hitler. Communist Party. Sorry? Yes, Neha, give the response. Ma'am, Neha, Nazi you know party. Nazi party. Hina, Nazi party is not. Yes. Ma'am, Monist Party. Nuremberg Party. Ma'am, Monist Party. Nitesh is right. Nationalist, Socialist, Worker, German Party. हम उसको नाजी पार्टी भी कह सकते हैं बिकॉज उसका नाम बाद में चेंज होके क्या हो गया था, नाजी पार्टी हो गया था. ओके, नॉट मुनीश पार्टी. ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज, what term is used to refer to the mass murder of selected group of innocent civilians in Europe by Germany during World War II? What term is used to refer to the mass murder of selected group of innocent civilians in Europe by Germany during World War II? Yes, Nitesh is right. Anybody else? Repeat the question. Yeah, sure. What term is used to refer to the mass murder of selected group of innocent civilians in Europe by Germany during World War II? Final solution. Sorry, no. May I tell? Nitesh, you are right. Yes, Nitesh, give the response. Genocidal. Yes, genocidal war. It's fine, beta. Good one. Now we are coming on the art of propaganda. We will start our chapter. अभी तक जो हमने पढ़ा वो नाजीज के व्यूज के बारे में पढ़ा कि नाजी का व्यू क्या था, वो किस तरीके से यूथ को ट्रीट करता था, किस तरीके से वो और किसको ट्रीट करता था, मदरहुड जो होती थी उनको ट्रीट करता था. Now we are coming on the next topic and that one is the women in Nazi Germany and propaganda. How was the women in the Nazis? What was the condition of women in the Nazi Germany? Can you explain me? Students, can you explain me about the women in Nazi Germany? Yes. Nobody. In Nazi Germany, the girls were be taught to become good mothers and rear pure-blooded Aryan children. Girls had to be maintain the purity of race, distance themselves from Jews, and look after the home and teach their children about the Nazis' ideology. Is it fine? They want to be give the children's Nazis value. They want to be teach their children their Nazis value. Okay, they will stay at home and they look after the children of their children, and their children will be get all the views of related to the values of Nazis. They want to he wanted to be the bearers of the Aryan culture and race. Okay, समझ में आ रहा है वो क्या चाहता था कि आर्यंस के जो बच्चे हैं वो पूरा जो कल्चर है वो किसका सीखें, नाजी का सीखेंगे. बिल्कुल नाजी का कल्चर सीखें. नाजी. बिल्कुल वो फोकस जो कर रहा था वो किस पर फोकस कर रहा था, कि वो फोकस्ड ऑन द नाजीज आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी. मैम आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है? 300 केबी. हेलो, अरे केबी, एमबी नहीं केबी. Who is there? Just mute yourself, beta. Who is there? Mute yourself.
हाँ जी, here is the question कि what do you mean by ideology? Ideologies क्या होती हैं? अलग अलग परसेप्शन, अलग अलग व्यूज, अलग अलग सोच। सबकी सोच कैसी थी? अलग अलग थी। लेकिन जो नाजी पार्टी, देखो गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग थी, गांधी जी की सोच अलग थी। गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या थी? ही बिलीव्स इन पीस, गांधी जी किस पे विश्वास Peace. करते थे? Non-violence. Peace. Non-violence. नॉन वायलेंस पे, ट्रुथ पे, सिंपलिसिटी में विश्वास करते थे। लेकिन अगर मैं नाजी की आइडियोलॉजी कहूँ तो नाजी की आइडियोलॉजी कैसी थी? नाजिज्म, जो हिटलर की जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी? वो किस चीज पे विश्वास करता था? ही बिलीव इन, लड़ाई में Dictatorship. बिल्कुल, ही बिलीव इन डिक्टेटरशिप, Dictatorship. ही बिलीव्ड इन वायलेंस। किसमें विश्वास करता था? वो वायलेंस में विश्वास करता था। और वो इस पे विश्वास करता था कि जर्मन जो है वो पूरी तरह से, जर्मनी क्या बन जाए? पूरी तरह से Powerful बन जाए. Powerful. बिल्कुल। सो जो नाजी जो थे, वहां पर जो वुमेन्स की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। वो मैंने आपको कल भी समझाया था कि किस तरीके से वो वुमेन्स को अवॉर्ड करता था, किस तरीके से वो उनको ब्रॉन्ज प्रोवाइड करवाता था, किस तरीके से उनको गोल्ड प्रोवाइड करवाता था, किस तरीके से वो उनको मेडल्स प्रोवाइड करवाता था। He wants to be Nazi introduced to many ways to be hate the Jews by the making of posters. यहाँ मैं आपको Nazism the art of propaganda की बात कर रही हूँ। जो नाजी रिजाइम था, they use the language and the media with care and the often of the great effect. What were the terms they used? The terms they used, they coined to be described their various practices are not be only be deceptive, they are chilling. Nazis never use the word kill and murder in their official communication. वो कभी भी kill और murder को use नहीं करते थे। Mass killing will term the special treatment. उनके साथ क्या किया जाए? उनको ये नहीं कहते थे कि उनको मार दिया जाए, उनका मर्डर कर दिया जाए, उनको किल कर दिया जाए। वो ये बोलते थे, वो ये यूज करते थे कि उनके साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। क्या होना चाहिए उनके साथ? बताइए, उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए? Special स्पेशल बताइए। ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। एंड उन्होंने बात की थी सिलेक्शन की, डिसइंफेक्शन की, ये वर्ड्स वो यूज करते थे। एंड मीडिया वाज केयरफुली यूज्ड टू विन द सपोर्ट फॉर द रिजाइन। नाजी आइडियाज वर स्प्रेड थ्रू द विजुअल इमेजेस। फिल्म के थ्रू वो अपनी नाजी पार्टी को क्या कर रहे थे? स्प्रेड कर रहे थे। रेडियो के थ्रू कर रहे थे, पोस्टर्स के थ्रू कर रहे थे, इसके अलावा स्लोगन्स के थ्रू अपनी पार्टी को क्या कर रहे थे? स्प्रेड कर रहे थे। इज इट What is क्लियर? leaflets? सॉरी बेटा, व्हाट यू आर What is सेइंग? leaflets? लीफलेट्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लीफलेट्स? स्टूडेंट्स, अरे तो बहुत इजी वर्ड है, ये तो हम लोग यूज करते हैं कई बार। नोबडी नोज। स्टूडेंट्स, Ma'am, what? the word in your book page number 68, that is leaflets. What do you mean by leaflets? This is a word meaning. Ma'am, पत्तों पे? printed sheet of paper giving information. Yes, yes, that is a type of a print. Hello, yes, students, you want to say ask something? Ma'am, repeat. No, ma'am. This word is known as the एक्चुअली इस वर्ड को हम जो प्रॉपर वे में यूज करेंगे, दिस इज अ कंपाउंड ऑफ लीफ। लीफ क्या होती हैं? व्हाट डू यू मीन बाय लीव्स? पत्तियां। पत्तियां होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट बेटा। दिस इज अ पीस ऑफ पेपर दैट्स गिव द इंफॉर्मेशन टू राइट समथिंग। जैसे आप लोग पेजेस पे लिखते हो, वो लोग किस पे लिखते थे इंफॉर्मेशन? Leaf पे. बिल्कुल, लीव्स पे। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। जो नाजीज्म थे, उनका जो आइडिया था वो ये आइडिया था कि हमारा जो नाजीज्म का जो ओवरव्यू है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाए। और उसको फेमस करने का उनके पास क्या तरीका था? उनके पास तरीका क्या था? रेडियोस थे, फिल्म्स बनाना, इमेजेस प्रोवाइड करवाना, पोस्टर्स बनाना, इवन लीफलेट्स जो होते हैं उन पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. यस मैम।
In the posters, groups identified as the enemies of German were stereotyped, mocked, abused, and described as evil. Socialists and liberals were represented as weak and degenerate. Is it clear? यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बेटा? यहाँ पर मैं मोस्टली जो बात करूंगी, मैं आपसे आर्ट ऑफ प्रोपोगेंडा, किस तरीके से नाजीज जो थे वो अपने आर्ट को किस तरीके से फैला रहे थे, अपने आप को किस तरीके से फेमस कर रहे थे, हम उसकी बात कर रहे हैं. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. The Nazis regime used language and media with care and often to great effect. And Nazis worked on the mind of the people. They tapped their emotions. They turned their hatred and anger at those marked as undesirable. The most infamous film was, कौन सी film थी? जल्दी बताओ. Tell me the name of the film. The Internal Jews. Eternal Jew. Yes. Eternal And Jews. the Eternal Jews. The eternal Jew. The eternal Jews. Jews. बिल्कुल. And that Orthodox Jews were stereotyped and marked. Hitesh, don't worry, I will provide the notes to you. Don't worry, beta. And German Jews, by their own outward appearance, they were very highly assimilated community. And they were be referred as a vermin, rats and pests. पता है उनको किसके साथ रखा जाता था? उनको चूहों के साथ रखा जाता था. और चूहे जो होते थे वो क्या करते थे उनके साथ? बहुत कुतर देते थे. करते थे. हाँ, उनको कुतर देते थे. जैसे कपड़ों को कुतर देते हैं, इस तरीके से चूहे उनकी स्किन को भी खा जाते थे. At that time, even the Jews began to believe in the Nazi stereotypes about them. And he set up such a system of education so as to produce strong supporters for Nazism education. The religion was also brought under the state control. Even the church could be possible source of opposition. Is it clear? यहाँ तक किसी को कोई problem है? Students, is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. Now we are coming. एक word और यहाँ पर आ रहा है, knowledge about the Holocaust. What do you mean by Holocaust? क्या था ये Holocaust? It was only after the war ended that people came to know about what had happened. The Jews wanted the world to know about the atrocities and suffering they have been endured during the Nazi killing operation. आपको पता है नाजी जो behave करते थे, उनका जो behave था, that was very embrace. जो उनका behave था बहुत ज़्यादा embrace था. किसके लिए? Especially for the Jews. Jews के साथ जो वो behave कर रहे, that was not very good behave. Ordinary peoples और जो थे उनके साथ बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटी होता था, बहुत ज्यादा क्राइम होता था, और उस क्राइम के साथ वो ह्यूमिलेट होते थे बहुत ज्यादा. सो जो कॉमन पीपल थे उनका रिएक्ट क्या रहा नाजिज्म के लिए? दैट वाज वेरी, कैसा रिएक्ट था उनका नाजिज्म को लेकर? वो उनका रिएक्ट जो था, वो रिएक्शन जो था, वो कैसा था? इट्स ऑन द पेज नंबर 72. जस्ट कम ऑन द पेज नंबर 72. पेज नंबर 72 पे आ जाइए. ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में नॉलेज अबाउट द होलोकॉस्ट that was trickled about the Germany during the last year of regime. The Jews wanted the world to remember the atrocities and suffering they have been endured, the Nazi killing operation, and they known as the Holocaust. इसके अंदर जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे आपको, मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से उनका जो मैसिव जो प्रोग्राम्स थे वो किस तरीके से थे, वो किस तरीके से गन्स को किस तरीके से यूज में लेते थे. वो ये नहीं कहता था कि हम लोगों को बटर चाहिए, हम लोगों को लोग बटरिंग करें. नहीं, वो बटरिंग नहीं चाहता था. वो केवल ये चाहता था, नाजी क्या चाहता था, हिटलर क्या चाहता था, हिटलर का मेन मोटिव क्या था? व्हाट वाज द मेन? जर्मनी, वो जर्मनी को सबसे ज्यादा पावरफुल करना चाहता था, स्ट्रेंथन करना चाहता था. इसलिए उसने डिफरेंट टाइप ऑफ क्या किया, मेथड अपनाए. बिल्कुल. और उसने उन मेथड्स में पूरी तरह से जो ज्यूज थे उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया? हाउ वाज द ट्रीटमेंट विद देम? अनडिजायरेबल, वेरी बैड, बहुत ज्यादा, Very bad. डोमिनेट हाँ किया जी. उनको. क्या किया बेटा?
क्या किया? टॉर्चर किया। टॉर्चर टॉर्चर किया, और साथ साथ में उनको किस तरीके से उसने उनके साथ बिहेव किया, और टॉर्चर करने के अलावा क्या किया उसने? बहुत ही क्या-क्या क्रीपी चीजें तरीके गया? से, बहुत ही क्रीपी तरीके से किया था, चूहे छोड़ दिए थे। हाँ, चूहे छोड़ दिए थे, और क्या क्या किया? बस चूहे ही याद है, बाकी कुछ याद नहीं है? उनको मार मैम उनको शॉक भी देते थे वो लोग, वो उनको जैसे शॉक देते थे और उनको जहरीली गैस छोड़ देते थे जिससे वो मर जाते थे। हाँ जी, और उनके साथ मतलब इस तरीके से किलिंग ऑपरेशन किए जाते थे, और क्या किया जाता था? फील करवाते थे। बिल्कुल, और वुमेन्स के साथ भी क्या किया जाता था? बहुत ज्यादा बुरा व्यवहार किया जाता था, बहुत गंदा बिहेव किया जाता था। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया, हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट का मतलब समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय हॉलोकॉस्ट? Yes, ma'am. तबाही मचा A situation where everywhere destroyed and मैम तबाही जहाँ पे मचाना बहुत बहुत बड़े सारे स्केल लोग, यस यस, जहाँ पे मैम बहुत सारे लोगों को मारा जाता था, बहुत सारे ज्यूज को एक साथ मारा जाता था, उस जगह का उन्होंने उसका नाम क्या दिया? होलोकॉस्ट. That was the mass killing of millions of Jews by the Nazi regime is known as the Holocaust. That Jews were taken to the gas chamber, उनको गैस चैम्बर पे लाया जाता था, वहां उन्हें मारा जाता था, उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर वाला बिहेव किया जाता था. Is it clear? yes ma'am. सबको क्लियर हो गई ये चीज? यस मैम। ये सब चीजें जो हैं यहाँ पर हम यहाँ पर नाजिज्म जो था किस तरीके से मॉन्स्ट्रस बिहेव कर रहा था, नाजिज्म पार्टी का जो बिहेव था वो कैसा था? मॉन्स्ट्रस बिहेव था. मॉन्स्ट्रस का मतलब डू यू नो? व्हाट डू यू मीन बाय मॉन्स्ट्रस नेचर ऑफ द नाजी? मैम मॉन्स्टर्स के जैसा। कैसा? मॉन्स्ट्रस कैसे होते हैं? राक्षसी। हाँ, बहुत ज्यादा खराब होते हैं वो. रहम नहीं करते। बिल्कुल. तो यहाँ पर भी क्या विश्वास था उसको? He believed that the racial purity, supremacy of Aryan race of Germans, he was barbarity started with Germany first of all. He killed the Jews, and anti-fascist people were killed at the concentration camp. Even he killed in gas chambers by the use of poisonous gas especially, and sometimes instead of killing people straight away, they were left to the German industrialists first so that they could be full use of their labor. अगर वो उसको डायरेक्टली नहीं मारते थे तो क्या करते थे? उनको कहाँ भेज देते थे? बताइए, कहाँ भेज देते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट के पास. और वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? बहुत ज्यादा वर्क करवाते थे. बिल्कुल, लेबर के साथ बहुत ज्यादा वर्क करवाते थे. एंड दे फर्म मेड गुड्स फ्रॉम ह्यूमन स्किन्स. And Nazi doctors also conducted biological experiment on human beings. Even जो doctors होते थे वो भी क्या करते थे? Biological experiment करते थे. And the large part of urban population of occupied Europe was either used as slave or as a specially the exterminated. 10 lakhs people of Russia were killed. Half of them were Jews. मतलब mostly जो Jews थे उनकी condition तो बहुत ज्यादा worse थी. The Nazis killed about 10 million Jews, 10 million peoples. पता है उन्होंने कितने लोगों को मारा था? 10 million peoples को मारा था. किन्होंने? नाजीज ने. इसलिए हेलमट के फादर को क्या कर दिया गया लास्ट में? उन्होंने अपने शूट कर दिया था. बिल्कुल, वो सुसाइड होता है. हाँ भाई, लास्ट में उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया, अपने आप को उन्होंने शूट कर लिया. ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है. इस चैप्टर में मैं आपको एक बार फ्लो चार्ट दिखाना चाहती हूँ कि जो फ्लो चार्ट है उस चैप्टर में हमने पूरा क्या पढ़ा. इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी. सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने ये जाना कि व्हाट इज नाजिज्म, नाजिज्म क्या था या क्या है, हु इज हिटलर, हिटलर कौन था, एंड व्हाई ही आर स्टडीइंग अबाउट दिस ऑल. और हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने हिटलर के बारे में क्यों पढ़ा? क्या आप बता सकते हो? कैन यू टेल मी व्हाई वी रेड दिस चैप्टर? क्योंकि पेपर में आएगा इसलिए. क्योंकि पेपर में आएगा. अच्छा, और एनीबडी एल्स? डिक्टेटरशिप को समझने के लिए. डिक्टेटरशिप को समझने के लिए. और ताकि हमें पता चले वर्ल्ड वॉर सेकंड कैसे हुआ था, क्यों हुआ था. और मैम सिचुएशन क्या थी जर्मनी की ये पता चले. और किस चीज की नॉलेज?
अराउंड वर्ल्ड हमारे क्या होता था पहले? हमें यहाँ पर ये नाजिज्म वाला जो चैप्टर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हिटलर ने कुछ अपनी फॉरेन पॉलिसीज और होम पॉलिसीज बनाई थी जो आज तक भी यूज में आती हैं। डू यू नो दैट? हम उनको आज भी यूज में लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आज भी हम यूज लेते हैं, बता सकते हो आप? डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप और नेशनल यूनिटी की पॉलिसी क्या आज यूज में नहीं लेते हम नहीं कहते नेशनल यूनिटी की बात नहीं करते हम? जैसे हम करते हैं। यस मैम। क्या हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं करते? क्या एजुकेशन की बात नहीं की जाती? बताइए स्पीकर। यस मैम। यस मैम। करते हैं। की जाती है ना। तो ये सारी चीजें हमने कहाँ से सीखी? ये सारी चीजें हमारे सामने कहाँ से आई बेटा? जर्मनी से। जर्मनी। तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा। जिसको रेस्पॉन्स देना है वही ओपन करिए क्योंकि आप लोगों की एक्चुअली आवाज आती है तो वहां से पीछे से डिस्टरबेंस होता है। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीजियस पॉलिसी के बारे में भी पढ़ा था जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में भी। इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों ने किसकी बात की थी? हमने हिटलर को पढ़ा। इस चैप्टर को हमने इसीलिए पढ़ा क्योंकि हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने भी क्या हुए थे, जितनी भी चैलेंजेस हमारे सामने आए थे, जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, उनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हमने इस चैप्टर में वेमायर रिपब्लिक के बारे में पढ़ा, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ा, इकोनॉमिक डिप्रेशन कैसे आया उसके बारे में पढ़ा, किस तरीके से हिटलर की जो पावर थी वो क्या हुई, स्प्रेड हुई, उसके बारे में पढ़ा, और किस तरीके से नाजिज्म जो था वो किस तरीके से स्प्रेड हुआ, क्या क्या इशू रहे उसको लेकर, हाउ, व्हाई एंड व्हाट, दीज थ्री थिंग्स आल्सो वी हैव रेड। इज इट क्लियर? यस इज मैम। इट क्लियर? यस। ओके। मैम। हम लोगों ने इस चैप्टर में नाजिज्म का वर्ल्ड व्यू पढ़ा। मैं आपको वापस इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको एक बार क्लियर हो जाए। अच्छा, जब हमने नाजिज्म का वर्ल्ड व्यू पढ़ा था तब मैंने चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर की बात की थी। क्या आप मुझे बता सकते हो चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर के व्यूज क्या थे, उनकी आइडियोलॉजीज क्या थी, वो किस पर विश्वास करते थे? मैम चार्ल्स डार्विन तो वो नेचुरल साइंटिस्ट थे। वो क्या कहते थे, उनका आइडिया क्या था, व्हाट वाज हिज थिंकिंग? डिस्क्रिमिनेशन। नेचुरल सिलेक्शन। हाँ, नेचुरल सिलेक्शन। एक्चुअली चार्ल्स डार्विन जो थे उनका जो कंसेप्ट था इवैल्यूएशन करने का वो था नेचुरल सिलेक्शन। वो फेथ करते थे, विश्वास करते थे किस चीज पर? वो विश्वास करते थे कि जो इवैल्यूएशन है वो नेचुरली सिलेक्शन होना चाहिए। आप लोग साइंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा डार्विन के बारे में, पढ़ा है आपने? तो मैम डार्विन की आइडियोलॉजी पढ़ी है? अच्छा, No, हो ma'am. सकता है 9th क्लास में नहीं हो अभी, मे बी मैंने साइकोलॉजी में पढ़ा था। साइकोलॉजी में भी डार्विन का पूरा एक प्रिंसिपल है और जिसमें वो ये कहते थे कि जैसी जैसी कंडीशन होगी, जैसी जैसी सिचुएशन होगी, हम उसी को क्या कर लेंगे, नेचुरली अडॉप्ट कर लेंगे। अडेप्शन की बात करते थे वो। ये कहते थे, आप लोगों को पता है कि जिस तरीके की कंडीशंस होती है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं डायनासोर्स की, डायनासोर अब क्यों नहीं है, पहले क्यों थे, अब क्यों नहीं है डायनासोर? नेचुरल कैलेमिटी। यस मैम, नेचुरल कैलेमिटी। नेचुरल कैलेमिटी और नेचुरल सिचुएशन। मेन बात है नेचुरल सिलेक्शन की, कि जिस तरीके का वातावरण होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, हम उसी तरीकों का क्या कर लेते हैं, अडेप्शन कर लेते हैं, हम उसी को अडॉप्ट कर लेते हैं। फाइन। यहाँ पर जैसे एक पिक्चर में समझाया हुआ है कि जो स्मॉल पर्सन है, जो स्मॉल एनिमल है, वो किस तरीके से। मैम पिक्चर इज नॉट क्लियर मैम। माय वॉइस इज नॉट क्लियर मैम पिक्चर इज नॉट क्लियर। पिक्चर इज नॉट क्लियर। क्लियर है मैम। Actually, this is only a picture of a plant and animal. Here, 3 types of animal. अरे देखो, पीयूष पहले तेरी आपको आंखें पता है खराब है। सॉरी प्लीज डोंट डिस्कस लाइक दिस। आप लोगों को पता है मुझे ये सब चीजें नहीं अच्छी लगती। लिसन स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है पहले ह्यूमन बीइंग कैसे थे? फर्स्ट में मंकीज की तरह वो कैसे चलते थे? कैसे बंदर चलते थे?
बंदरों की एनिमल्स मैम बंदरों की तरह एनिमल्स की तरह बंदरों की तरह ही चलते थे, दोनों हाथों और दोनों पैरों से। लेकिन ma'am. जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती गई, किसी ने अपना फोन अनम्यूट कर रखा है, हु इज देयर? थैंक यस यू, सोनी 9th बी। सॉरी, थैंक यू, इट्स ओके बेटा। यश थोड़ा सा म्यूट करके रखो। एक्चुअली उस टाइम हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स होते थे वो दोनों हाथों और दोनों पैरों से चलते थे, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होने लगी, हम लोगों ने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर लिया? बोलो, नेचुरल Adopt कर सिलेक्शन लिया। किया कि नहीं किया? हम लोगों ने उसमें अडॉप्शन किया कि नहीं किया? तो ये जो रूल Yes, था, ma'am. इनका जो रूल था, किसके रूल की बात कर रहे हैं हम? आई एम टॉकिंग अबाउट हिटलर रूल। हिटलर के रूल की बात कर रहे हैं हम। आई Darwin. एम नाजी। चार्ल्स डार्विन का जो कंसेप्ट था वो यही कहता था कि नेचुरल सिलेक्शन होना चाहिए। हम लोगों की जो थिंकिंग है वो किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? जिस तरीके की सिचुएशन और कंडीशन है। यानी जो ह्यूमन बीइंग है वो कभी भी ह्यूमन इंटरवेंशन को अडॉप्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट वन वाज हर्बर्ट स्पेंसर। हिज आइडिया वाज ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जैसा सर्वाइवल होगा, हम जितना फिट होंगे उतना ही हम अच्छे से क्या कर पाएंगे? सर्वाइव कर पाएंगे। बिल्कुल, जितना हम फिट होंगे उतना ही तो सरवाइव कर पाएंगे, है कि नहीं है? Yes. यहाँ पर एक सर्वाइवल ऑफ Yes. द फिटेस्ट का भी एक दिया हुआ है, उसमें ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से जो लायन है वो स्मॉल एनिमल के पीछे भाग रहा है, स्मॉल एनिमल उससे भी स्मॉल एनिमल के पीछे भाग रहा है। यानी हम सर्वाइवल किस तरीके से करते हैं? हमारी फिटनेस के अकॉर्डिंग। इज इट क्लियर? यस मैम। यहाँ Yes, तक किसी को ma'am. कोई प्रॉब्लम है? तो ये चीजें नाजिज्म ने भी अडॉप्ट की थी, यानी हिटलर ने भी अडॉप्ट की थी। हिटलर ने क्या अडॉप्ट किया था? हिटलर ने ये कहा था कि जो चार्ल्स डार्विन है, जो हर्बर्ट स्पेंसर हैं, उनके ही अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने आइडियोलॉजी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, यानी वही व्यक्ति सरवाइव कर सकता है जो सरवाइव करने के लायक होगा। यानी उसका कहना था कि आर्यंस जो हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। आर्यन सरवाइव क्यों कर सकते हैं? आर्यंस इसलिए सरवाइव कर सकते हैं क्योंकि वो क्योंकि वो सरवाइव fittest करने है। के Physically लायक हैं, fit वो है। फिटेस्ट हम हैं। फिजिकली इसी तरीके से फिजिकली वो क्या fit है? है फिर। फिट है। बिल्कुल। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी लेबोरेटरी में कर और उन्होंने ये रिसर्च की थी कि किस तरीके से अगर हमको सरवाइव करना है तो उसको करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और उसमें हमें फिट रहना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति फिट रहेगा, जो पर्सन फिट रहेगा, वो क्या करेगा? सरवाइव करेगा। और उनका ये सबसे अच्छा उनका तरीका क्या था? उनका ये कहना था कि आर्यंस जो हैं वो सबसे ज्यादा फिट हैं, इसलिए वो क्या कर सकते हैं? सरवाइव कर सकते हैं, और बाकी लोग फिट नहीं है, वो कहीं ना कहीं उनके साथ प्रॉब्लम है, इसलिए वो सरवाइव नहीं कर सकते। ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट, सॉरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू मैम। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर मेरा फिनिश हो गया है, पर मैं कल टेस्ट लेने वाली हूँ आप लोगों का। कल हमारी क्लास है 9th क्लास? नो मैम कल नहीं है। तो मैम कल कल कब नहीं है है। हमारी क्लास? Saturday को। Monday को। परसों। सैटरडे को। सैटरडे को। को। Okay. तो मैं सैटरडे को आप लोगों का टेस्ट ले लेती हूँ। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बार बार मत खोलिए, जिसको जरूरत है केवल वही ओपन कीजिए। तो मैं आप लोगों का सेट, यस आई विल टेक योर प्रैक्टिस टेस्ट फ्रॉम गूगल फॉर्म एंड आई विल गिव यू 15 और 20 क्वेश्चंस। हम इसके मार्क्स जोड़ेंगे क्या? मार्क्स जुड़े या नहीं जुड़े इससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैम, आपको कौन से ये चैप्टर? प्रैक्टिस मैम टेस्ट कौन देना, से चैप्टर आएंगे? हाँ ये मैं बता रही हूँ आपको, प्रैक्टिस टेस्ट देना कंपलसरी है। आप लोगों के चैप्टर आएगा फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन, ओके, ओके मैम। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन, और उसके अलावा आपका ज्योग्राफी का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? यस मैम। एनी Yes, ma'am. प्रॉब्लम? एनीबॉडी हैव एनी? हाँ बोलिए, स्पीक अप। मैम वो जो गूगल फॉर्म आएगा वो एमसीक्यूज में आएगा या फिर आंसर क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में? नहीं, एमसीक्यूज। मैम ठीक है मैम। मैम वो हिस्ट्री कॉपी तो स्कूल में है। कोई बात नहीं, अभी बुक में से पढ़कर दो, बुक तो मैम आपके क्वेश्चन पास है। आंसर्स? क्वेश्चन आंसर्स क्या हुआ? बुक पढ़ोगे, सिर्फ आपको चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीड करके आंसर्स अपने आप आ जाएंगे। चैप्टर रीड कीजिए।
I am taking attendance. Okay, students. 9th A. Aniket. Aniket. Anshul. Anshul Nitharwal. Anushka Dhingra. present ma'am. बेटा आप लोग अपनी अटेंडेंस दीजिए प्लीज. अंशुल निथारवाल is present. Anushka ma'am. Dhingra is present. Chinmay. Present, ma'am. Okay, Chinmay. Divyansh. After Divyansh, Drishti. After Drishti, Gauri. Gunjan. Present, ma'am. Okay, Gunjan. Harsh Gupta. Harsh Pratap. Hina Ilani. Present, ma'am. हिना इलानी. हिया अटल. ओके हिना मैंने लगा दी. हिया आपकी भी लगा दी है. सॉरी हिना मैंने आपकी लगा दी है. हिया अटल. देन जयप्रकाश. जया कोडवानी. Present, ma'am. ओके जया. देन केशव शर्मा. किरण. किरण इज देयर. Present, ma'am. ओके किरण. देन लीशा. Present, ma'am. ओके लीशा. मीत. मीत. ओवेश कुरैशी. नंदिनी जौहरी. Present, ma'am. नीरज. नेहा. Present, ma'am. पार्थ. पायल साहू. रिया शर्मा. रूपाक्ष. सचिन तिलवानी. Present ma'am. ओके सचिन. साहिल. साक्षी रावत. साक्षी रावत. Present, ma'am. ओके साक्षी. आफ्टर साक्षी शुभी. Present, ma'am. स्नेहा. Present, ma'am. ओके बेटा. वंश. Present ma'am. विशाल. and Yuvraj Sahil Ramani. Now we are coming on 9th B. That is Ma'am. Abhishek. Yes. मैम हमारी अटेंडेंस नहीं आई. कृष्णा मैंने तुम्हारा एक्चुअली लास्ट में नाम लिखा हुआ है. कोई बात नहीं मैंने लिख दिया. हमारी भी नहीं आई. हमारी कौन? राशि. राशि. मैंने आप लोगों का न्यू स्टूडेंट्स में अलग से नाम लिखा हुआ है बेटा. ओके मैम. कोई बात नहीं. नो प्रॉब्लम. अभिषेक मीना. आदित्य कुमार सिंह. Present ma'am. अक्षिता सैनी. अनंत. Present ma'am. अंकित. Present, ma'am. अंशुल. अंशुल मुदगल. अंशु मुदगल. हाँ मीत आपकी लगा दी मैंने. ओके. अनुकृति. आर्यन बद्रानी. Present ma'am. ओके आर्यन. ओके. दिव्यांश. Present ma'am. ओके. दिव्यांश. दृष्टि. Present, ma'am. हर्षल माथुर. Present हिमानी ma'am. निहलानी. हितेश खानचंदानी. हाँ हर्षल लगा दी. मैम ईशान. हितेश प्रेजेंट. हाँ हितेश मैंने लगा दी. ईशांत. ईशांत is not present today. Okay. After Ishant, Jatin. Karan. Krish. Ruchi. Present, ma'am. Mahi. Furkan. Shiraz. Present ma'am. Okay. निधि चिपरमलानी. Present, ma'am. निधि आप क्लास में नहीं थे. आप अभी अभी Ma'am, एंट्री. सॉरी मैंने आपकी मैम absent लेट उठी हूँ. हाँ तो मैंने आपकी एब्सेंट लगा दी. निधि मैं प्रेजेंट नहीं लगा सकती. सॉरी बेटा. नितेश. Present ma'am. पराग. पायल. पराग इज देयर. पराग. पायल. Yes ma'am. ओके. पायल बंसल. पीयूष चंदवानी. पूजा यादव. Present, ma'am. ओके. ओके. साक्षी. साक्षी. सुहानी. तनीश. यश कुमावत. यश सोनी. Present, ma'am. and Yash Yuvraj Singh Chauhan. Present ma'am. Okay, Yuvraj Singh Chauhan is present.
नहीं नहीं युवराज ने यश सोनी। हाँ यश सोनी की तो मैंने लगा दी बेटा। युवराज सिंह चौहान, नो, इट्स ओके बेटा। And tomorrow, I mean, on Saturday, I will take your test. New students के बोल रही हूँ, just wait बेटा, just wait. New students के भी मैं बोल रही हूँ। Name present. On Saturday, I will take your test, so be prepared about the test. Is it okay? Now, new students, I am telling your name. कौन सी चैप्टर है? अरे यार, ज्योग्राफी का फर्स्ट एंड सेकेंड, ओके, एंड हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ओनली। ओके मैम। ओके मैम। अभी यही सिलेबस रहेगा क्या? हाँ बिल्कुल जी। एनी अदर क्वेश्चन? न्यू स्टूडेंट्स, कृष्णम, Present, ma'am. ओके, रियान, प्रेजेंट मैम। ओके, राशि, Ma'am. सॉरी, अक्षत, मैम। प्रांजल, नवीन, प्रांजल एंड ओके। मैम प्रांजल इज प्रेजेंट। हाँ प्रांजल मैंने लगा दिया। ओके बेटा, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय। मैम मेरा नाम मयंक सिंह गहलोत। अरे मयंक आपका तो रह गया, सॉरी बेटा मयंक। मयंक मैंने लिख दिया है, अब आपका रह जाता है मयंक बार बार। ओके मैम टेस्ट कैसे लोगे? गूगल फॉर्म पे। गूगल फॉर्म पे मतलब कैसे? गूगल फॉर्म पे मैं आपका लूंगी ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ट्रू फॉल्स होगा। अच्छा ठीक है, मैम थैंक यू। लिंक कब आएगा? क्रिश मैं लगा दूंगी आपके प्रेजेंट। मैम लिंक कब तक आएगा? लिंक आपके पास जब मैं क्लास ओपन करूंगी तब आ जाएगा, हैंड टू हैंड, डोंट वरी। और मैम ये इसके मार्क्स थोड़ी ना जोड़ेंगे? आपको टेस्ट देना है, मार्क्स जुड़े या नहीं जुड़े, दिस टेस्ट इज कंपल्सरी फॉर यू। ओके ओके मैम। ओके बेटा, टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम।